Assalamualaikum, dear students. This is Khande Imtiaz. Today we have to discuss chemistry class, and our topic is structure of atom. Dear students, in this lesson we will discuss about the structure of atom. Let us start. First of all, you know that what is an atom. Dear students, I have told already you matter is anything that takes up space and has a mass. You know that all matter is made up of atoms. Atoms are the building blocks of matter. Sort of how bricks are the building blocks of the house. Similarly, atom is the building block of matter. Dear students, I have already told you about the John Dalton's atomic theory but all matter is made up of atoms. Atoms of elements are identical. Each element has different atoms. Atoms can engage in a chemical reaction. Atoms can neither be created nor destroyed. Atoms are indivisible. I have already tell you about this atomic theory. Now, dear students, charged particles in matter. Atoms have a three types of subatomic particles. जो atom होता है ये further three types of particles का बना होता है. These are electrons, protons and neutrons. यानी कि atom में तीन चीज़ें होती हैं. एक होता है electrons, protons और neutrons. Electrons are negatively charged. Protons electrons and protons are positively charged particles and neutrons are neutral. The mass of an electron is 1 by 2000 by the mass of hydrogen atom. The mass of a proton is equal to the mass of hydrogen atom and is taken as one unit. The mass of neutron is equal to the mass of hydrogen atom and is taken as one unit. Discovery of these subatomic particles. Who are the persons who discovered these subatom particles, that is protons, electrons and neutrons? In 1900, J.J. Thomson discovered the presence of negatively charged particle called electron in the atom. In 1886, E. Goldstone discovered new radiations in a gas discharge and called them canal rays. These rays were positively charged. This later led to discovery of the positive charged particles called protons in an atom. Similarly, in 1932, Chadwick discovered the presence of particles having no charge in the atom called neutrons. Dear students, the electron was discovered in 1897 by Thomson. He imagined that atom is a resin pudding with electrons stuck in a cake of positive charge. जिस तरह ये वाटरमेलन में जो बीज होते हैं, इन बीजों को आप समझिए ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और ये किस में है, एम्बेडेड है, लगे हुए हैं. इसी तरह जो डिस्कवर ऑफ प्रोटॉन, ये एजेंट गोल्डस्टन नोट स्ट्रीम्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इन कैथोड रे in 1886. Particles move in opposite direction of cathode rays called canal rays because they pass through holes. Channels are canals. That is why they are called canal rays. Drilled through the negative electrode. Discovery of neutron. In 1932, J. Chadwick discovered another subatomic particle which has no charge and mass nearly equal to that of proton. It was eventually named as neutron. Neutrons are present in the nucleus of all atoms except hydrogen. हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी सब एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन्स होते. In general, neutron is represented as small n. The mass of an atom is therefore given by sum of the masses of protons plus neutrons present in the nucleus. थॉमस प्लम पडिंग मॉडल, इसने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया, एटम का स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं थॉमसन प्लम पडिंग मॉडल. In 1897, the English scientist J.J. Thomson provided the first hint that an atom is made up of even small particles. इसी ने पहले ये हिंट दिया कि एटम्स में फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखते हैं. ये थॉमसन जो मॉडल हैं, अकॉर्डिंग थॉमसन एन एटम इज सिमिलर टू क्रिसमस पडिंग.
The pudding has positive charge and electrons have a negative charge while like plums on the pudding. He proposed that an atom consists of positively charged sphere and the electrons were embedded in it. The negative and positive charges are equal in magnitude. इसने बोला जो जितनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं उतने पॉजिटिव चार्ज हैं इस एटम में. सो द एटम हैज़ ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इसलिए ये जो एटम है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने पढ़ा. अब ये जो थॉमसन मॉडल हैं ही प्रपोज ए मॉडल ऑफ एटम. मैंने आपको पहले बोला इसको एटम्स आर मेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज. एटम जो है ये पॉजिटिव चार्ज का बना है और नेगेटिव चार्ज का बना है जो एम्बेडेड इन लाइक ए रेजिनस इन ए pudding. The negative positive charge are equal in magnitude, so atoms are electrically neutral. फिर दूसरा मॉडल जो आया इम्पोर्टेंट मॉडल आया एटॉमिक स्ट्रक्चर का. पहले जे थॉमसन आया, उसके बाद रदरफोर्ड आया. उसने एक एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड फॉयल पे. गोल्ड का एक थिन स्लाइस लिया, उस पे एक्सपेरिमेंट किया इन 1908. द इंग्लिश फिजिस्ट Aristo Rutherford was the hard at work to an experiment that seems to have little to do unraveling mysteries of the atomic structure. इसने क्या दिया? Rutherford's model of atom क्या है? इसने क्या किया? Rutherford इसको बोलते हैं, दूसरा नाम Rutherford's alpha scattering experiment. Rutherford allowed a beam of fast moving alpha particles having positive charge to fall on a thin gold foil. इसने alpha particles जो पॉजिटिव चार्ज उसको हिट किया किस पे? गोल्ड फॉयल पे. ही ऑब्जर्व दैट, उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए. क्या? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल. कुछ अल्फा पार्टिकल्स पास हुए हैं गोल्ड फॉयल के. सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वाया स्लाइटली डिफ्लेक्टेड. कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं बाय स्मॉल एंगल्स. वेरी फ्यू ऑफ पार्टिकल अपीयर टू रिबाउंड. लेकिन कुछ थोड़े बहुत कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स हुए वो वापस रिबाउंड हुए हैं. तो उसने क्या किया? जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉयल पे, द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट वाज दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल इन द गोल्ड एटम. कुछ वहाँ पे हैं जिसकी वजह से इस गोल्ड फॉयल जिसकी वजह से कुछ जो रेज हैं वो डिफ्लेक्ट हुए. सिंस अल्फा पार्टिकल वायर मच हेवियर देन प्रोटॉन, he did not expect to see large deflection. So most of the positive charge bullets passes right through the gold atom in the sheet of gold foil. Some of the positive charge bullets however did not bounce away from the gold. कुछ बाउंस हुए, कुछ बाउंस नहीं हुए हैं. hit the same something solid. He net that positive charge repel positive charge. तो this could only mean that gold atom in the sheet were mostly open space. उसने ये अखज़ किया कि इस गोल्ड स्पेस में गोल्ड जो फॉयल है इसमें कुछ ओपन स्पेस हैं, खाली जगह है. एटम्स वायर नॉट ए pudding filled with a positive charged material. Rutherford conclude that atom has a small dense positive charge center to repel this positive charged bullets. तो उसने देखा लेकिन इसमें सेंटर में कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं जिसकी वजह से ये अल्फा पार्टिकल जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसने उसको डिफ्लेक्ट किया, दैट इज रिपल्शन किया. ही कॉल्ड द सेंटर ऑफ द एटम द न्यूक्लियस. उसने बोला जो सेंटर में जो ये चीज़ है ये न्यूक्लियस है और इसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव. द न्यूक्लियस इज टिनी कंपेयर टू द एटम एज द होल. और न्यूक्लियस जो है ये बहुत छोटा है एज कंपेयर टू एटम. अगर हम कंक्लूजन देखेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का, इट इज़ इम्पोर्टेंट कंक्लूजन. आप इन पॉइंट्स को वन बाय वन लर्न करना. मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी. इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये ऑब्जर्वेशन हुई कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम के अंदर बहुत सी स्पेस खाली है. क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल. अगर इसमें खाली जगह नहीं होती तो ये अल्फा पार्टिकल्स पास नहीं होते. तो ये पास क्यों हो गए? क्योंकि देयर इज ए एम्प्टी स्पेस. नंबर 2, द एटम हैज़ ए स्मॉल न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज. और ये भी याद रखना कि
हमें ये पॉइंट भी ऑब्जर्वेशन में आया कि सेंटर में न्यूक्लियस है और उसका चार्ज पॉजिटिव है। क्यों? बिकॉज सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज वायर स्लाइटली डिफ्लेक्ट, क्योंकि जब पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स वहाँ गए तो वो डिफ्लेक्ट हो गए बाय स्मॉल एंगल्स। तो तीसरा पॉइंट हमें ये निकला रिजल्ट नहीं, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ द एटम। और तीसरा हमें ये जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू एटम। और वाई? बिकॉज फ्यू अल्फा पार्टिकल अपियर टू रिबाउंड, क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हुए हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज द न्यूक्लियस। और जो पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम जो है वो किसकी वजह से? न्यूक्लियस के। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, एंड एटम हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस। हमें क्या निकल गया? एटम इज पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है एट द सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज ड्यू टू न्यूक्लियस। एक पॉइंट हमें ये मालूम चल गया रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट से कि सेंटर में एक न्यूक्लियस है और वो पॉजिटिव चार्जड है और उसी की वजह से एटम का मास है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तीसरा पॉइंट हमें ये मालूम चल गया, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। और न्यूक्लियस का साइज वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। ये 3 पॉइंट्स हमें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुए हैं। अब हम कह सकते हैं रदरफोर्ड रीजन इज दैट ऑल एटम्स positive charged particles were continued in a nucleus and the negative charged particles were scattered outside the nucleus। जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में है और जो नेगेटिव चार्ज है वो स्कैटर्ड, वो किसके इर्द गिर्द है? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अराउंड द एटम्स एजेस। लेकिन यहाँ हमें याद रखना चाहिए कि रदरफोर्ड जो मॉडल हैं इसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं, इसमें कुछ कमियाँ हैं। क्यों? एनी पार्टिकल्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, हम बोल रहे हैं कि ये ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स, जब ये ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं दे गो अंडर गो एक्सेलेरेशन। जब ये अंडर गो एक्सेलेरेशन हो जाएंगे एंड ड्यूरिंग एक्सेलेरेशन देयर चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, ये एनर्जी को रेडिएट करेंगी। सो द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स वुड लॉस एनर्जी, जब ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन लॉस एनर्जी करेंगे एंड दे फॉल इनटू न्यूक्लियस, तो ये किस में फॉल हो जाएंगे? न्यूक्लियस में चलेंगे। एंड द एटम्स वुड बी अनस्टेबल, फिर उसे क्या है? एटम अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन वी नो दैट एटम्स आर स्टेबल, लेकिन हमें ये ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर ये कंटिन्यूसली मूव करें, ये एनर्जी रेडिएट करते हैं, तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स वो किस में चला जाना चाहिए? वो न्यूक्लियस में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये फिर बाद में शायद बोहर ने इसको क्लियर किया है। थैंक्स फॉर वाचिंग हेयर, होप दैट यू हैव लर्न